靜候天光，曾屈服在漆黑裏已絕望。當時沒過傷痛，是你在旁，城寨夜晚是誰過往？Nice to see you. Hello, Jason. Nice to meet you too. 書入邊係有好多威風嘅大佬啊，但係江湖本身就係一條不歸路。我之前為咗寫劇本，睇咗好多關於黑幫鬥爭嘅書。我驚嘅係你每日都要面對呢種人、呢種事。諗掂你嘅嗰個肥七嘅死肥佬，我驚都未驚過佢啊！我唔係驚自己冇命啊！放心，有你六一哥喺度，冇人夠膽。啱先咁少嘅事啊，驚啊！我唔係唔想，我係幫你醫病嘅，唔係揾你玩嘅。你真係冇嗰方面嘅諗法？你點解唔去揾女人嘅？你每日除咗做嘢就係揾我玩。六一哥啊，性衝動，有冇對人有過心動嘅感覺？即係嗰種你係點確定自己中意邊個㗎？諗唔到你今日都幾 man 啦，啊？你咁中意食呢檔嘅魚蛋咩？好唔好食啊？2.0，2.01。1、2，做啦，100個最基礎嘅，快啲！跟住向上，揈兩嘢，囉柚要壓落去，然後大腿發力，核心收緊。再迷茫，再痛苦，都唔應該佔你便宜。嚇？我唔應該利用你嚟測試我嘅情感認知㗎。六一哥，對唔住啊，就你嗰陣，你係咪醒咗？你要講乜嘢啊？嗰日我不過遲啲啫。哦。我本來係要去外地嘅，只不過你講先。सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी
اس نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا، لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا، آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز، آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا، یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو، پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا، لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا، آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز، آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا، یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو، پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی، پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات
याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और
اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت
गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब पे। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब पे। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब पे। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर
पहले हो चुके हैं, दादा ने मुस्कुराकर कहा। इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई। मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है। इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई। मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है। इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई। मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी।
उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात
याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब पे। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब पे। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और
اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت گزرنے کے ساتھ بھی قیمتی رہتی ہے۔ اللہ حافظ۔ گائز آج ہم بات کریں ایک پرانی کتاب۔ ایک چھوٹے سے شہر میں اریب نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا لیکن وہ ہمیشہ نئی اور مہنگی کتابیں خریدنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کے دادا نے اسے ایک پرانی کتاب دی۔ اریب نے کتاب دیکھی اور کہا، دادا یہ تو بہت پرانی ہے، اس کے صفحے پر پہلے ہو چکے ہیں۔ دادا نے مسکرا کر کہا، اسے ایک بار پڑھ لو پھر فیصلہ کرنا کہ یہ قیمتی ہے یا نہیں۔ اریب نے کتاب گھر لے جا کر شیلف پر رکھ دی۔ کچھ دن تک اس نے اسے کھولا ہی نہیں۔ ایک شام اس کی بجلی چلی گئی، موبائل کی بیٹری بھی ختم تھی۔ بور ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس نے کتاب کھولی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، علم کی قیمت اس کی کتاب کی عمر سے نہیں، اس سے ملنے والی سوچ سے ہوتی ہے۔ اریب دلچسپی سے پڑھنے لگا۔ کتاب میں ایک بزرگ استاد کی کہانیاں تھیں جو لوگوں کو مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کرنا سکھاتا تھا۔ ایک کہانی میں لکھا تھا کہ کسی بھی مسئلے کا فیصلہ صرف اپنے فائدے کو دیکھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اریب نے یہ بات یاد رکھ لی۔ کچھ ہفتوں بعد اسکول میں اسے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینے کا موقع ملا۔ اس کے دوست نے کہا، اگر ہم دوسرے اسٹوڈنٹ کا آئیڈیا کاپی کر لیں تو ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں۔ اریب کو پرانی کتاب کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا، جیت کا مزہ تب ہی جب وہ اپنی محنت سے ملے۔ دونوں نے اپنا خود کا پروجیکٹ تیار کیا۔ ان کا پروجیکٹ پہلے نمبر پر نہیں آیا لیکن ٹیچر نے ان کی ایمانداری اور اوریجنل محنت کی تعریف کی۔ اریب گھر آیا اور دادا سے کہا، دادا آپ کی پرانی کتاب نے مجھے آج ایک ضروری فیصلہ کرنے کی مدد دی۔ دادا نے کہا، اب تم سمجھ گئے کہ کتاب پرانی تھی لیکن اس کا علم پرانا نہیں تھا۔ اریب نے اس کتاب کو اپنی شیلف پر سب سے خاص جگہ دے دی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی چیز کی قیمت صرف اس کی نئی یا پرانی ہونے سے طے نہیں ہوتی۔ صحیح علم اور اچھی سوچ وقت
गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर
पहले हो चुके हैं, दादा ने मुस्कुराकर कहा। इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। आरिफ ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी।
उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी कर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं। अरीब को पुरानी किताब की बात याद आई। उसने कहा, जीत का मजा तब ही जब वो अपनी मेहनत से मिले। दोनों ने अपना खुद का प्रोजेक्ट तैयार किया। उनका प्रोजेक्ट पहले नंबर पर नहीं आया, लेकिन टीचर ने उनकी ईमानदारी और ओरिजिनल मेहनत की तारीफ की। अरीब घर आया और दादा से कहा, दादा, आपकी पुरानी किताब ने मुझे आज एक जरूरी फैसला करने की मदद दी। दादा ने कहा, अब तुम समझ गए कि किताब पुरानी थी, लेकिन उसका इल्म पुराना नहीं था। अरीब ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे खास जगह दे दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी चीज की कीमत सिर्फ उसकी नई या पुरानी होने से तय नहीं होती। सही इल्म और अच्छी सोच वक्त गुजरने के साथ भी कीमती रहती है। अल्लाह हाफिज। सो है गाइस, आज हम बात करें एक पुरानी किताब। एक छोटे से शहर में अरीब नाम का एक लड़का रहता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो हमेशा नई और महंगी किताबें खरीदना चाहता था। एक दिन उसके दादा ने उसे एक पुरानी किताब दी। अरीब ने किताब देखी और कहा, दादा, ये तो बहुत पुरानी है, इसके सफ़े पर पहले हो चुके हैं। दादा ने मुस्कुराकर कहा, इसे एक बार पढ़ लो, फिर फैसला करना कि ये कीमती है या नहीं। अरीब ने किताब घर ले जाकर शेल्फ पर रख दी। कुछ दिन तक उसने उसे खोला ही नहीं। एक शाम उसकी बिजली चली गई, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी। बोर होते हुए उसकी नजर उस किताब पर पड़ी। उसने किताब खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, इल्म की कीमत उसकी किताब की उम्र से नहीं, उससे मिलने वाली सोच से होती है। अरीब दिलचस्पी से पढ़ने लगा। किताब में एक बुजुर्ग उस्ताद की कहानियां थीं जो लोगों को मुश्किल वक्त में सही फैसला करना सिखाता था। एक कहानी में लिखा था कि किसी भी मसले का फैसला सिर्फ अपने फायदे को देखकर नहीं करना चाहिए। अरीब ने ये बात याद रख ली। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में उसे एक कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके दोस्त ने कहा, अगर हम दूसरे स्टूडेंट का आइडिया कॉपी